नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारा चैनल एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने आ रहा है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन, और जिसको आपको पढ़ाने जाएंगी हमारी कोलीग, हमारी जो मैम है हिमानी पांडे। तो एक बार आप उनसे रूबरू हो जाइए। तो हिमानी पांडे मैम आपको पढ़ाएंगी इंडियन पॉलिटी, ये आपकी मैम है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा इनका लेक्चर, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। Let's look some of the other features of Panchayati Raj institutions. So it is in 73rd Constitution Amendment Act 1992. It is a 3-tier system, village level पर, intermediate level पर और district level पर। अगर population 20 लाख से कम है तो intermediate level वाला skip किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे states हैं उसमें कम population है तो 3 tier की जगह 2 tier भी हो सकता है if the population is less than 20 लाख। Then term होगा इसका 5 year का। After every 5 year there will be the election. At least 1/3 of the seats will be reserved for women in all 3 tiers, village, intermediate and district. उसमें 1/3 seats women के लिए reserve होंगी। State Election Commission पंचायती राज का election conduct करवाएगा। So State Election Commission will conduct the elections. Finance के लिए State Finance Commission will be formed by Governor every 5 years में। After every 5 years there will be the formation of State Finance Commission by the Governor, और वो सारा finance का काम करेंगे और पंचायती राज। So minimum age to contest election is 21 years, means all adult who has completed 21 years of age, और अगर वो criteria fulfill कर रहे हैं तो they can contest election for पंचायती राज। This act is very important. This is called PESA Act, Panchayat Extension to Scheduled Areas. Scheduled area we know that they come in 5th schedule of the Indian Constitution. पहले 1996 के पहले शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज सिस्टम वाज नॉट मैंडेटरी, बट आफ्टर दिस एक्ट शेड्यूल्ड एरियाज में भी उनके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ पंचायती राज को वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो थ्रू द पेसा एक्ट पंचायती राज विल बी इम्प्लीमेंटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल। दिस has been done after 19। पंचायती राज सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत सारी कमेटीज़ का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 4 इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ द 4 कमेटीज़ इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। टुडे इन दिस वीडियो वील अंडरस्टैंड what was Balwant Rai Mehta committee and what were its recommendations, the prominent recommendations. So Balwant Rai Mehta committee was formed in 1957 and Balwant Rai Ji Mehta was the head of the committee. The committee gave the following recommendations. It recommended for the 3-tier system, like for the democratic decentralization. Initially in India there were only 2-tier system, the central government and the state government. This committee suggested for democratic decentralization and formation of a local government. So the entire system of the entire federal system of the India would become 3-tier. 3-tier is further divided into 3 levels: the Gram Panchayat on the village level, Panchayat Samiti on block level, and Zilla Parishad on district level. So what the committee further recommended was, ग्राम पंचायत के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन कैसे? विलेज में जो विलेज असेंबली होती है, विच इज़ द ग्रुप ऑफ द एडल्ट्स इन द विलेज, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ द एडल्ट्स इन द विलेज, और ग्राम सभा इलेक्ट करेगा मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, एंड ग्राम पंचायत का हेड इज सरपंच। So election of Gram Panchayat and the Sarpanch is done by the members of Gram Sabha, which is the village assembly comprising the adults in the village. Gram Panchayat. So this election of the Gram Panchayat is direct one. Direct इसलिए क्योंकि गांव के लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं इसके मेंबर्स को।
फिर पंचायत समिति एंड जिला परिषद का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। पंचायत समिति का इलेक्शन कैसे होगा? ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जिनको जो ग्राम सभा के मेंबर्स ने जिन्हें इलेक्ट किया, ग्राम पंचायत के मेंबर्स पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। फिर पंचायत समिति के मेंबर्स फर्दर जिला परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से पंचायत समिति एंड जिला परिषद इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड ग्राम पंचायत इज द डायरेक्ट इलेक्शन। फिर कमेटी ने रिकमेंड किया पंचायत समिति वुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूशन करेगी, मतलब जो कोई भी प्लान्स बनाए जाएंगे, स्कीम्स बनाई जाएंगी ऑन द टॉप लेवल, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम पंचायत समिति करेगी, जो कि ब्लॉक लेवल की बॉडी है। फिर जिला परिषद एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी होगी, मतलब कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट में जो कुछ भी एडवाइस करने का काम होगा या फिर लोग कैसा काम कर रहे हैं उसे सुपरवाइज करने का काम जिला परिषद करेगा, और इसका हेड जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। तो ये सारी रिकमेंडेशंस दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, which was formed in 19. 4 major committees on Panchayati Raj institution. The second one is Ashok Mehta committee. This committee was formed in 1977 and it has also given its recommendation. So पहले हमने देखा कि बलवंत राय मेहता committee has given for the 3-tier system. This committee, the Ashok Mehta committee, has given recommendation for 2-tier system. One is the Mandal Panchayat. Mandal would be the group of villages, and the Jila Parishad on district level. So Mandal Panchayat was the group of villages and Jila Parishad on district level. The second and most important recommendation of this committee was the official participation of political parties at all levels of पंचायत elections. तो अभी हमारे पास क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वी डू नॉट हैव द पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर द इंडिविजुअल मेंबर्स, no participation of political parties, but this committee has recommended that political parties can participate or they must participate in the elections of the पंचायती राज at all levels. मतलब इस लेवल पर भी मंडल पंचायत पर भी पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज और जिला परिषद पर भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी. The third recommendation was Minister of Panchayati Raj in the State Council of Ministers. Means there should be a minister पंचायती राज के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जैसे पंचायती राज की डिमांड्स को जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या फिर स्टेट असेंबली में प्रेजेंट कर सके, तो उसके लिए एक प्रॉपर पंचायती राज का मिनिस्टर होना चाहिए. वो रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी में. द नेक्स्ट वन वाज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs STs ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में ज़्यादा SCs STs हैं या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन वहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए SCs और STs के लिए. एंड वन मोर रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 3-tier सिस्टम बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि अगर किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलती तो उसके पास वो राइट्स नहीं होता. दे कांट गो एंड से कि हमें ये चाहिए. सो दे हैव सेड दैट हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए, उसके थ्रू ये सिस्टम को लाना चाहिए. तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए बोला और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बोला. दिस वॉज द मेजर प्रोविजंस of the recommendation made by Ashok Mehta committee. So for the third committee we have G.V.K. Rao committee. This committee was formed in 1985 and it has also given its recommendations. So some of the prominent recommendation of G.V.K. Rao committee formed in 1985 are: it recommended for the regular elections of panchayats. So पंचायत का regular election होना चाहिए. अभी क्या है, after every 5 years we have the provision for elections to all the levels of पंचायती राज system. So this committee has asked for the regular elections of panchayat, and then it has also recommended for the post of district development commissioner. तो GVK Rao कमेटी ने सजेस्ट किया कि हमारे पास एक पोस्ट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की. So this member can coordinate with all other levels of the Panchayati Raj system. They can know their demands and
दे कैन पुट फॉरवर्ड और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में आसानी होगी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट को रिकमेंड किया। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज डिस्ट्रिक्ट एज द मेन यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी कमेटीज़ ने, किसी ने ग्राम सभा को मेन यूनिट कहा, किसी ने डिस्ट्रिक्ट को कहा, सो दिस कमेटी हैज़ रिकमेंडेड फॉर डिस्ट्रिक्ट एज द मेन यूनिट ऑफ प्लानिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अमंग द पंचायत जो 3 टियर है उसमें डिस्ट्रिक्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देने के लिए इस कमेटी ने बोला था। द 4th कमेटी इज एलम सिंघवी कमेटी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1986। इसके तुरंत 1 साल बाद इसकी रिकमेंडेशंस थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू PRIs मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिल जाएंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और ज़्यादा अकाउंटेबल हो पाएगी, इसलिए इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम्स को लाना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अमेंडमेंट और रिकग्निशन। सेकेंड, इट हैज़ रिकमेंडेड फॉर न्याय पंचायत। न्याय पंचायत बनना चाहिए फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब ग्रुप ऑफ विलेज हो उनके लिए स्पेसिफिकली न्याय पंचायत होनी चाहिए। और फिर जैसे कि GVK राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट को मेन यूनिट माना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, वैसे LM सिंघवी कमेटी ने ग्राम सभा को बेसिक यूनिट मानने के लिए बोला था। So far we have done all 4 committees, so we are done with it. Now I have a question for you, that you have to just set all the committees in the chronological order. We have done all 4 committees, उन्हें आपको chronological order में arrange करना है, and you can write your answer in the comment section. First video, I have tried to just put the topic in a very easy manner. अगर आपको कोई suggestion है on the topic or on the type of video, you can please write on the comment section. और अगर आपको topic useful लगा, so please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.